everyone, myself Supreet and you're watching Maths Academy by Supreet. So in this video, we're going to just continue with the remaining questions of exercise 14.1. So here the question number 13 is, a die is thrown once. Find the probability of getting number 1 a prime number. Okay, तो ये बात हमने समझा था कि जब एक die है उसके 6 faces हैं. So the total outcomes will be, so let's just write the total outcomes for one die is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो ये तो हो गए हमारे 6 टोटल आउटकम्स. करेक्ट. अभी इसमें जो नंबर 1 है वो हमें इसकी कंडीशन है दैट वी नीड अ प्राइम नंबर. अ प्राइम नंबर कौन से हैं जो बिल्कुल जो किसी और टेबल में नहीं आते. तो वी गोना जस्ट फाइंड प्राइम नंबर्स फ्रॉम दीज 6 काउंट्स तक में से. सो इफ आई विल सी आई हैव प्राइम नंबर लाइक 2, 3 and 5. 1 is not a prime number. Okay, 1 prime number नहीं है. So here we have 3 favorable outcomes if I need a prime number. Okay, so first part के लिए probability to get a prime number is equals to favorable कितने हुए? Favorables 3 and total outcomes 6. Correct. So here cancellations के बाद I will get my answer half. Got it? So the answer for the first question is 1/2. Now let's check the second part. A number lying between 2 and 6. Now we need the number which lies between 2 and 6. Okay, तो 2 and 6 के बीच में जो number है वो है एक तो 3, then we have a 4 and then we have a 5 here. Okay, so again I have a possible the probability to get a number lying between 2 and 6. The favorable outcomes are 3 here and total outcomes 6. So after cancellations again I'm getting a half here. Clear? So let's get into the third question. The third question is all about an odd number now. Okay, अभी मुझे odd number चाहिए तो 1 से 6 तक I have odd numbers like 1, then I have a 3 and a 5. Correct? So again, and the third part, probability to get an odd number is all about favorables, which is 3. Okay, जो अभी मैंने mark किया like 1, 3 and 5 and total outcomes 6. So here I got the same answer, which is half again. Okay, so whenever the question is like anything related to die or चाहे coin हो चाहे कुछ भी हो, just write the total outcome stuff. जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, samples basis लिखो so that you could get the answers quickly. Okay, so let's get into the second question. 14 is all about cards this time. Okay, one card is drawn from a well shuffled card deck of 52 cards. Okay, find the probability of getting number 1 a king of red color. ठीक है. अभी ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट वीडियो टोल्ड यू अबाउट द कार्ड्स के ऑल द डिटेल स्टफ. चलो अब दोबारा इधर करते हैं सो दैट द थिंग्स विल बी इजी फॉर यू. 52 कार्ड्स इन टोटल है. ओके, इसका 52 का हाफ इज 26 एंड 26, तो 26 इसमें वी हैव रेड एंड अदर 26 इज ब्लैक. ओके, अभी 26 का भी फर्दर अगर हम हाफ एंड हाफ करते हैं वी हैव 13 which is like heart shape. Okay, 13 we have diamond. Blacks में we have 13 club and 13 we have spade. Okay, अभी one more thing is very important here. हर नंबर आपका हर शेप में सिर्फ 1 टाइम ही आएगा. ओके, तो अगर आई टॉक अबाउट अ नंबर लाइक, चलो पहले नंबर लिखते हैं. लाइक नंबर स्टार्ट्स विद ए, देन 2, 3, 4, 5 and the other ones are J, then a Q and a K. Okay, तो what I'm saying कि जो नंबर है हमारा वो हर शेप में 1 टाइम ही आएगा. इन द होल डेक ऑफ कार्ड हर नंबर हर शेप में सिर्फ 1 टाइम आएगा. ओके, इफ आई एम टेकिंग एस तो एस मेरा हार्ट में भी आएगा 1 टाइम, फिर एक मेरा एस डायमंड में होगा, देन आई हैव एस इन क्लब एंड स्पेड में. करेक्ट. सिमिलरली विद अदर नंबर्स
अब मैं कोई भी नंबर लूंगी वो सारे ऐसे ही एग्जिस्ट करेंगे पूरे डेक ऑफ कार्ड में. हर नंबर हर शेप का वन कार्ड होता है इन अ पैक ऑफ कार्ड्स. ओके, नाउ इन टोटल इफ आई विल सी आई हैव 4 कार्ड्स. करेक्ट, 4 कार्ड्स है मेरे पास. एस के 4 कार्ड्स है जिसमें से 2 रेड कलर है और 2 ब्लैक कलर है. करेक्ट, और ये चीज एस के साथ है, यही चीज 2 के साथ होगा, 3 4 5 6 एंड टिल के. करेक्ट, अभी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट अ किंग ऑफ रेड कलर. ओके, तो किंग के भी यही केस होगा. आई एम हैविंग 1 हार्ट, 1 डायमंड, 1 क्लब एंड 1 स्पेड. ठीक है, अब आई नीड ओनली रेड कलर. रेड कलर में आई हैव 2 शेप्स, 1 हार्ट 1 डायमंड. अब उन्होंने ये मेंशन तो नहीं किया ना दैट आई नीड ओनली डायमंड और हार्ट. तो जब वो मेंशन नहीं करेंगे तो आप ऑल टुगेदर वो वाले पूरे रेड्स ले लोगे. ओके, तो आई हैव 2 रेड किंग्स. करेक्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द आंसर विल बी, so the first part is like probability of getting a red king colored card. तो इधर I have the favorable outcome which is 2. correct, because heart red है और diamond red है. spades और club मेरे black color की है. I need only the red colored and even shape भी उन्होंने mention नहीं करी, तो आप दोनों लोगे. and at the bottom all together I have 52 cards. correct, so the answer I'm getting is 26. 1 upon 26. Clear? So let's get into the second part now. Face cards. ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया. फेस कार्ड्स हमारे सिर्फ और सिर्फ J, Q एंड K है. ओके, एस फेस कार्ड नहीं है. मोस्टली स्टूडेंट्स एस के लिए भी ले लेते हैं. रिमेंबर, एस हमारा फेस कार्ड नहीं है. तो J, Q एंड K हमारे फेस कार्ड्स है. तो जैसे कि आई जस्ट टोल्ड यू, हर कार्ड का आई हैव 1 शेप इन द पैक ऑफ कार्ड. तो हर कार्ड आई एम हैविंग 4 टाइम्स. करेक्ट, तो J भी मेरे पास 4 है, Q भी मेरे पास 4 है एंड किंग भी आई हैव 4. तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं? 12. करेक्ट, तो द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट फेस कार्ड्स. ना उन्होंने कलर पूछा है, ना उन्होंने शेप के लिए कुछ बोला है, तो जस्ट टेक ऑल टुगेदर. तो प्रोबेबिलिटी टू गेट अ फेस कार्ड इज ऑल अबाउट फेवरेबल आउटकम्स 12 over total outcomes, and the answer here is, if you will take away, it's like 2 6 12. okay, and here you got the answer which is like 3 over 13. correct, now let's get into the third question. The third question is all about a red face card. okay, now they are asking for a face card but it should be red in color. okay, तो हमने अभी भी डिस्कस किया था कि फेस कार्ड्स हमारे पास 12 हैं. तो J, Q, K के लिए सेपरेटली वी गोना सी. और इसमें से जो 4 कार्ड्स हैं उसमें से हमेशा 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक. ओके, एंड इधर उन्होंने कोई हमारे को शेप मेंशन नहीं करी. दे जस्ट नीदर रेड कलर की बात हो रही है. तो 2 रेड है, 2 ब्लैक है. सिमिलरली इधर भी 2 रेड्स 2 ब्लैक एंड 2 रेड्स 2 ब्लैक. करेक्ट, तो मैं इसमें से सिर्फ रेड्स ले लूंगी. तो रेड आई हैव 2, देन 2 एंड 2, ऑल टुगेदर आई हैव 6 काउंट्स. तो द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ रेड फेस कार्ड, द आंसर विल बी, for the third I'm going to write here, red face card total outcomes मेरा 52 है and favorable outcome is 6 here. okay, so 2 times 3. okay, and here I got my answer which is 3 upon 26. correct, now let's get into the fourth part. The jack of hearts. Now I need the jack of hearts. तो मैंने जैक किसको बोला? J को. करेक्ट, और मैंने आपको क्या बोला है? हर शेप का I have 1 कार्ड. करेक्ट, जैक भी चाहिए, हार्ट भी चाहिए, तो शेप के अकॉर्डिंग 1 ही कार्ड होगा. राइट, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हार्ट्स. जैक ऑफ हार्ट्स इज लाइक 1. ओके, बिकॉज अगर मैं जैक को देखूंगी, जैक में आई 1 हार्ट, 1 डायमंड, 1 क्लब एंड 1 स्पेड. ओके, सो आई नीड ओनली जैक ऑफ हार्ट्स. हार्ट मेरे पास सिर्फ 1 है, दैट इज 1,
and 52 at the bottom as total outcomes. Correct? Let's get into the fifth part, a spade. अब उन्होंने spade बोला है, ना कोई number बोला है and nothing related to number, कोई भी number हो सकता है, correct? तो total spades I have in the pack of card, कितने spades है मेरे पास? ना ये हमें देखना है, spades I have 13, correct? So accordingly my answer should be, for the fifth part I'm going to write here 13 over 52, which is, like, you can cancel it out, and that is giving you 1 upon 4. So in the sixth question, they're asking for the queen of diamonds. Okay, the queen of diamonds में, as I told you, fourth question का just same है. तो queen of diamond में we have one with heart, queen one with diamond, one with club, one with spade. Okay, तो कितना है हमारे पास queen of diamonds? 1. Correct? तो question number 6, queen is 1, so 1 upon 52. Clear? So this was the answer for the first part, in which we got the king of red color. Second part के लिए we got 3 upon 13, which is a face card का. Then we have the third question, which is red face cards, and the answer here is 3 upon 26. The jack of hearts for the fourth question, that is 1 upon 52. And the fifth question is all about getting a spade, which is 1 over 4, which is 1/4. And the last question is all about the queen of diamonds, which is 1 upon 52. Got it? Let's do the next part. 5 cards in which the 10, okay, 10 है, we don't know 10 कौन सा है, कौन सी shape है और कौन सा color है, okay, it's just a 10 number. Then we have one jack with us, वो भी हमें नहीं पता कौन से shape का और color का है. We have one queen, king and an ace that is of diamond shape, ये mention है, correct? अभी यहाँ पे we have total cards 5, तो total outcomes कितने हैं? That is 5. करेक्ट. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखते हैं. जब हमने जस्ट रैंडमली हमने एक कार्ड पिक किया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन. अभी क्वीन कितने, इतने 5 कार्ड्स में से 1. करेक्ट. सो फर्स्ट ऑप्शन जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक वी जस्ट नीड टू पिक द क्वीन कार्ड. सो प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, if you will see, that is 1 over total outcome, which is 5. Clear? Second part, if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace. अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो आपने queen निकाली थी ना जस्ट अभी, वो आपने बिल्कुल साइड पे रख दी. Okay, the queen is drawn and put aside. Now अब आप इसको काउंट नहीं करोगे because you have taken it out. अब आप वापस तो नहीं रख रहे हो. Okay, you are just keeping it aside. तो अब remaining total cards कितने हैं मेरे पास? Total outcomes अभी मेरे पास कितने होंगे? Because अभी क्या हुआ ना, मैंने queen नहीं लेनी है because I have already taken that out and I'm not putting it out back. Okay, तो I'm just gonna keep it aside. इसको हम side रख देंगे तो remaining outcomes मेरे पास हो जाएंगे 1, 2, 3 and 4. So this time the total outcome is 4. तो first question है इसके लिए an ace. अभी मुझे चाहिए कि मैं ace pick कर रही हूँ. Okay, ace कितने हैं? 1. Okay, so here the probability to get an ace is 1, but total outcome हम 4 लेंगे because अभी उन्होंने बोला कि आपने queen निकाल ली है and you are not gonna put it back. Okay, put it aside का मतलब यही है कि उसको साइड रख लिया है, वापस आप उसमें नहीं रखने वाले हो. You are not gonna count that in the total outcomes. Okay, so the answer here is 1 upon 4. Now the next part is a queen. अब वो पूछ रहे हैं आपको क्वीन चाहिए. क्वीन मेरे पास एक ही थी, वो भी मैंने निकाल ली थी एंड आई एम नॉट काउंटिंग दैट नाउ, तो वो उसका आंसर हो जाएगा पार्ट बी का 0. बिकॉज मेरे पास एक ही क्वीन थी जो मैंने अब काउंट नहीं करनी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन दैट एंड आई एम नॉट गोना पुट इट बैक. ओके, सो क्वीन इज ड्रॉन and put it aside.
क्वीन निकल चुकी है, इसको हमने साइड पे रख दिया है, और अब अगर दोबारा मुझे क्वीन चाहिए तो उसका ऑप्शन ही नहीं है, तो दैट इज 0. ओके, गॉट इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. So here the 16th question says 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. Okay, if it is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. Okay, one pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. अभी देखो 12 defective थे, तो I have the defective ones which is 12 in count, और गुड वंस है 132. करेक्ट. अभी टोटल पेन्स कितने हैं मेरे पास? आई एम गोना ऐड दीज टू एंड दैट विल गिव मी 144. ओके, अभी क्या हो रहा है? इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन. अब आप पेन की तरफ नहीं देख सकते हो, उस बैग में नहीं देख सकते हो जहां पे पेन्स हैं, एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव. अभी आप पेन निकाल रहे हो बट आपको नहीं पता कि वो ठीक है या खराब निकलेगा पेन. ओके, वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द स्लॉट. अब आप एक पेन इसमें से निकालने वाले हो. डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन. अब देखो मैं पेन निकाल रही हूँ, मुझे नहीं पता वो डिफेक्टिव आएगा या फिर सही आएगा, बट द प्रोबेबिलिटी टू गेट the good one is, good pen कितने हैं? 132. okay, that is the favorable outcome because मैं क्या देख रही हूँ? good one देख रही हूँ, and the total outcome is 144. तो अब हम इसको just cancel करेंगे. 266, that is 72, that will give me 33, and that is like 36, and that's what the answer is. correct? I hope you got this one. कि जब पेन मेरे पास टोटल ऑल टुगेदर जिसमें से थोड़े से खराब हैं और मुझे नहीं पता कि कौन सा पेन मेरे हाथ में आएगा, बट आई नीड द गुड वन. ओके, तो मैं गुड वन को देखूंगी एंड टोटल आउटकम विल बी 144. करेक्ट? आई होप यू गॉट दिस वन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 17th one now. Okay, 17th says a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. ठीक है, 20 bulbs हैं और उसमें से 4 डिफेक्टिव है. One bulb is drawn at random from the lot. Okay, what is the probability that the bulb is defective? मुझे नहीं पता कि क्या निकलेगा, but I just need the probability of the defective bulb only. तो मैं defective देखूंगी. Correct? तो यहाँ पे I have total bulb which is 20 in counts. Okay, so let's just get into the good ones. अगर उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं तो डेफिनेटली मेरे रिमेनिंग ठीक होंगे. ओके, क्योंकि 20 इस टाइम टोटल है, तो मेरे 16 गुड वंस हैं और 4 मेरे डिफेक्टिव है. ओके, करेक्ट. यहाँ पे आई नीड टू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफेक्टिव वन ओनली. तो प्रोबेबिलिटी टू गेट अ डिफेक्टिव वन, पार्ट 1 इज 4 अपॉन टोटल कितने हैं? 20. करेक्ट, एंड आई गॉट माई आंसर विच इज 1 अपॉन 5. So now let's start the second part. Suppose the bulb drawn in number 1 is not defective and is not replaced. ठीक है, तो आपने एक बल्ब निकाला और वो बिल्कुल गुड वन था, वो सही था. ठीक है, और वो आपने रिप्लेस भी नहीं किया. तो गुड वन में आपके 16 थे जिसमें से आपको एक मिल चुका था. अब रिमेनिंग जो गुड आपके पास बचे हैं वो 15 है. ओके, और क्योंकि आपने वापस तो उसको डाला नहीं. नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट. अब जो बचे हुए बल्ब हैं उसमें से आपने एक बल्ब और निकाला. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? ठीक है, अभी सेकेंड पार्ट में नॉट डिफेक्टिव का निकालना है. तो लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चन नाउ. फेवरेबल आउटकम कितने हैं मेरे नॉट डिफेक्टिव के? देखो मैंने पहले एक निकाल लिया था जो उन्होंने मुझे जस्ट अभी यहाँ बताया है, और मैंने उसको वापस भी नहीं डाला. तो जब मैं ऑलरेडी एक निकाल चुकी हूँ तो रिमेनिंग मेरे पास 15 गुड वंस है. ठीक है, तो फेवरेबल मेरे पास होंगे 15. ये समझ आ गया? आई हैव नॉट टेकन 16 बिकॉज एक मैंने निकाल दिया है विच इज ऑलरेडी एक्सप्लेन एंड दे जस्ट ट्राई टू जस्ट मेक यू ट्रिक कि ये बल्ब आप निकाल चुके हो और वापस भी आप नहीं रख रहे हो.
ठीक है। तो रिमेंबर, जब आप वापस नहीं लिखते हो, रिप्लेस नहीं करते हो, तो वो चीज़ आपको माइनस करनी होगी, करेक्ट। तो 1 आपका निकल चुका है, इसलिए आपने उसको सब टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। रिमेनिंग गुड बल्ब्स आपके पास 15 है। अब डिनोमिनेटर क्या आएगा? डिनोमिनेटर विल नॉट बी 20 दिस टाइम, क्योंकि 1 बल्ब आप निकाल चुके थे और आपने उसको वापस भी नहीं डाला था। ये जो रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से करना। रिप्लेस कर रहे हैं, वापस डाल रहे हैं, तो टोटल आउटकम पे फर्क नहीं पड़ता। बट जब रिप्लेस नहीं करते, विदाउट रिप्लेसमेंट या नॉट रिप्लेस लिखा है, तब आपको वो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 20 टोटल आउटकम्स थे, 1 आपका निकल गया है, गुड 1 निकला है या बैड वॉट एवर, रिप्लेस नहीं किया है, एक बल्ब निकल चुका है। सो दैट इज 19 नाउ। ओके, सो द आंसर विल बी 5/19। ओके, तो रिप्लेस एंड रिप्लेस विदाउट रिप्लेसमेंट में कीप इन माइंड कि आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है एंड अकॉर्डिंगली आपने उसका टोटल एंड फेवरेबल्स को मार्क करना है। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So a box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90। ठीक है, अब एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं, जिसमें से 1 to 90 तक उन पे नंबर है। जैसे कि 1 डिस्क है लाइक दिस। ओके, नाउ वी हैव सेकेंड, सिमिलरली 3 4 5 6 एंड अप टू 90। ओके, तो यहाँ पे क्या है? इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स नंबर 1 अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो पहले भी तो वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्क इज लाइक टू डिजिट नंबर। देखो, जब आप काउंटिंग करते हो तो 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, ठीक है, अप टू 90। तो आप खुद देखोगे कि जब आप 1 से 9 तक काउंट करते हो कि आपके सिंगल डिजिट होते हैं, उसके बाद जस्ट डबल डिजिट स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि 10 11 12 13 अप टू 90 सब आपको डबल ही मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ 9 नंबर ऐसे थे जो सिंगल डिजिट के थे। तो हमें कौन सा चाहिए? फेवरेबल क्या है यहाँ पे? 2 डिजिट नंबर। तो टोटल नंबर्स है मेरे पास 90। ठीक है, अब हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, जस्ट हम सिंपल देखेंगे जो सिंगल डिजिट है हम उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और टोटल में से 9 नंबर ऐसे थे जो मेरे सिंगल डिजिट थे और रेस्ट ओवर डबल डिजिट। तो जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, आई गॉट 81। ओके, तो प्रोबेबिलिटी टू गेट ए डबल डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का 81 फेवरेबल आउटकम, और टोटल कितने हैं? 90। ओके, दैट्स हाउ आई गॉट माई आंसर। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। सो द आंसर इज 9/10। ओके, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में दे जस्ट वॉन्ट अस टू टेल अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। परफेक्ट स्क्वेयर नंबर चाहिए। अ परफेक्ट स्क्वेयर होते हैं जैसे कि आई हैव द परफेक्ट स्क्वेयर 2 का विच इज सम 1 का 1, आई हैव 2 का 4, if I go more, I have 3 ka, 9s, 4 ka we have 16, 5 ka I have 25, 6 square is 36, 49, 64, 81, 100। 100 हम नहीं लेंगे बिकॉज वी नीड अप टू 90 ओनली। ठीक है, तो चलो हम इसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम आपका कितना आ रहा है? परफेक्ट स्क्वेयर्स कितने आ रहे हैं आपके 1 से लेके 90 तक में? वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, टोटल आउटकम कितना था? 90 अगेन। That's how you got your answer, which is 1/10. Okay, now let's do the third question. A number divisible by 5. ठीक है, अभी मुझे नंबर चाहिए जो बिल्कुल divisible by 5 हो। तो नंबर जो आपके divisible by 5 है वो always ends by 0 और 5। ये आपने डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा। तो चलो हम 5 का टेबल लिख देंगे, वो सारे नंबर 5 के कवर करेगा, विच इज लाइक 5 10 15 20 25 30 35 40 45, then we have 50, we have to go more। ठीक है, स्किप बाय 5 करोगे तो सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। 65 75 80 85 एंड 90। अभी 95 नहीं लेना, वी हैव टू स्टॉप हियर। अभी आप इसको काउंट करोगे तो इन टोटल यू आर हैविंग द नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ओके, तो यहाँ पे आपका फेवरेबल आउटकम कितना आया?
18 and total outcomes were 90. Okay, तो just solve it out. जैसे कि you're gonna get like this and the answer here is 1/5. Got it? Let's get into the second question. पिक्चर में like एक रेक्टेंगल है और बीच में भी है सर्कल. वो बोल रहे हैं जब आपने ड्रॉप किया एक डाई को रैंडमली जब आप थ्रो कर रहे हो जाना तो वो रेक्टेंगल के बीच में ही चाहिए, बट उस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्कल पे ही लैंड कर रहा है. ठीक है, तो इसके लिए पहले तो हम टोटल ऑल टुगेदर देखेंगे. तो ऑल टुगेदर मतलब टोटल आउटकम हमें कैलकुलेट करना है, जिसका मतलब टोटल आउटकम यहाँ पे क्या है, हमें ये देखना है कि टोटल रीजन कितना है हमारे पास जिसमें डाई थ्रो हो सकता है. अब 2 ऑप्शंस है, या तो वो सर्कल के बीच में जाएगा या वो सर्कल के बाहर आएगा, और दोनों चीज़ें किस में लाई कर रही हैं, एक रेक्टेंगल में. तो चलो पहले रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं. सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ टाइम विड्थ. ओके, तो यहाँ पे आई हैव 3 times 2 दैट विल गिव मी 6 मीटर स्क्वायर. तो ये मेरा टोटल आउटकम होगा. ठीक है, या तो वो रेक्टेंगल के अंदर सर्कल के बाहर होगा या सर्कल के अंदर. करेक्ट, तो ये मेरा टोटल आउटकम है. यहाँ पे आई जस्ट नीड टू गेट द सर्कल वाला एरिया भी. तो एरिया ऑफ अ सर्कल, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर. ओके, तो डायमीटर मुझे पता है विच इज 1. तो रेडियस इज ऑलवेज द हाफ ऑफ डायमीटर. सो रेडियस इज ऑल अबाउट 1/2 का स्क्वेयर. सो एरिया ऑफ सर्कल मेरा आ रहा है पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वेयर. ओके, अभी मुझे दोनों के एरिया मिल गए. तो लेट्स डू द प्रोबेबिलिटी नाउ. प्रोबेबिलिटी मेरा फेवरेबल आउटकम मुझे चाहिए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल. मुझे सर्कल के अंदर ही मेरा डाई जाएगा. दैट इज ऑल आई नीड. ओके, तो फेवरेबल आउटकम मेरा एरिया ऑफ सर्कल रहेगा विच विल बी एट द टॉप, एंड बॉटम पे आएगा टोटल आउटकम विच इज 6. ओके, नाउ ये जब हमारा मल्टीप्लाई होता है ये नीचे ड्रॉप हो जाता है एंड देन इट्स लाइक 1/6. इसका रिवर्स हो जाता है एंड वी गॉट द आंसर π/24. ओके, तो प्रोबेबिलिटी दैट माई डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल इज π/24. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें a lot consist of 144 ball pens. Okay, 144 ball pens है of which 20 are defective. तो टोटल पेन्स है मेरे पास, टोटल पेन्स आई हैव 144. 20 कितने हैं डिफेक्टिव. सो डिफेक्टिव पेन्स 20. The others are good. नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड. तो पहले तो मैं गुड पेन्स निकालूंगी. गुड पेन्स होंगे मेरे, सब्ट्रैक्ट करूंगी टोटल में से डिफेक्टिव. ओके, तो डिफेक्टिव सब्ट्रैक्ट करते ही आई विल गेट 124. तो गुड पेन्स है मेरे पास 124, टोटल पेन्स 144 एंड डिफेक्टिव 20. नाउ नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड. अगर सही पेन होगा नूरी तभी खरीदेगी, राइट, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव. तो ये कंडीशन हमें देख के करना है क्वेश्चन. द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर. What is the probability that she will buy it? अब उन्होंने कंडीशन पहले ही दे दी है, नेचुरल है. नूरी तभी पेन खरीदेगी जब पेन बिल्कुल सही होगा. करेक्ट, तो she will buy when the pen will be a good pen. तो गुड पेन के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितना है हमारे पास 124 एंड टोटल आउटकम्स व 144. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे एंड द आंसर विल बी 31 and 36. Got it? So the answer for the first part that she will buy the pen is 31/36. Let's do the next part. She will not buy it. वो कब पेन नहीं खरीदेगी जब पेन डिफेक्टिव होगा, राइट. तो probability of a defective pen this time, probability that she will not buy it. तो defective pen 20 है and total we have 144. Again let's just take it away like times 5 and 36 at the bottom. Okay, so the answer here is 5/36. Simple. Okay, let's do the next question.
सो रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पे ना वी हैव अ टेबल जिसे हमें कंप्लीट करना है. पहले हम इसको करेंगे बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन 22 का फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट है. ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं, देन वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में दे जस्ट वांट अस टू कंप्लीट द टेबल. तो सम ऑन टू डाइस. अच्छा, ये ना इसमें डाइस का टेबल बनाना पड़ेगा. इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू हाउ टू मेक इट वेरी क्विकली. फटाफट से चलो हम इसका डाइस का टेबल कंप्लीट करते हैं, देन वी विल डू द क्वेश्चंस. ओके, तो डाइस के टेबल के लिए 1 1. सो आई एम गोना टेक 1 की चीज़ें सारी. 1 विल बी ऑन द फर्स्ट डाई और सेकेंड को आई एम गोना जस्ट कीप ऑन चेंजिंग अप टू काउंट 6. ठीक है, then I will take 2 on the first die, keep on changing the second die. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट सम ऑफ टू डाई. ठीक है, यहाँ पे जो आपको ये ऊपर 2 लिखा है ना, दैट इज लाइक यू हैव टू सी सम ऑफ टू डाई इज 2. ठीक है, जब आप सम कर रहे हो मीन्स ऐड कर रहे हो, दोनों डाई पे जो भी नंबर आ रहे हैं वो आपको 2 दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इट वॉज 1. ठीक है, आप देखो इसमें सम ऑफ 2 आपको कब मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, आप इससे ज़्यादा का ट्राई भी करोगे तो यू आर नॉट गेटिंग सम ऑफ टूज. ओके, दैट्स वाई द आंसर इज 1/36 बिकॉज टोटल आउटकम कितना था ऑफ 2 डाइज 36. आप इसको काउंट करोगे यू विल गेट 36 ऑल टुगेदर. ओके, अब हमें देखना है सम ऑन 2 डाइज इट शुड बी 3 दिस टाइम. ठीक है, अब हम देखेंगे हमें 3 कब मिल रहा है. जब मैं टोटल आउटकम में से 3 देख रही हूँ, सो आई एम गेटिंग 3 ऑन, आई थिंक इस पे मुझे 3 मिल जाएगा 1 और 2 पे. करेक्ट, और इसका ही ऑपोजिट है 2 और 1 दोनों पे 3 मिल रहा है. इफ आई विल चेक विद अनदर्स आई एम नॉट गेटिंग एनी ऑफ द ऑप्शंस जिसमें मुझे 3 का सम मिल रहा हो. करेक्ट, तो यहाँ पे आई हैव 2 पॉसिबिलिटीज टू गेट 3. तो यहाँ पे आई विल पुट 2 एट द टॉप एंड 36 एट द बॉटम. अब आप इसको कैंसिल्स भी कर सकते हो, कैंसिलेशंस भी कर सकते हैं हम इधर. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 हमें चाहिए जब हम दोनों डाई पे जो नंबर आ रहे हैं उनको ऐड कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग 4. ठीक है, तो यहाँ पे 4 मुझे मिल रहा है व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस वन. आई थिंक ये मुझे 4 दे रहा है, राइट, और इसका ऑपोजिट भी मुझे 4 देगा. और कोई 4 दे रहा है? येस, 2 and 2 इज ऑल्सो गिविंग मी 4. एनी अदर नंबर विच इज गिविंग मी 4? नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इसके बाद तो आई एम गेटिंग मोर देन 4 के नंबर. ठीक है, लाइक 2 और 2 के बाद आई एम गेटिंग 5 6, मोर देन 4 आ रहा है. तो सम of getting 4 is in 3 combinations or 3/36. 5 का सम चाहिए मुझे. 5 के सम के लिए I have option like 1 4 ये वाला, या फिर इसका ऑपोजिट 4 1. ठीक है, 5 मुझे और कैसे मिल सकता है? 3 और 2 का सम, 2 और 3 का सम. Any other option which can make 5? I don't think so. तो अकॉर्डिंगली वी हैव 1 2 3 and 4 ऑप्शंस. करेक्ट. 6 के लिए वी गोना जस्ट चेक ऑल ऑफ दीज. 6 के लिए आई हैव 1 5. इसका ही फ्लिप करके, जो साथ में आप नंबर लेते हो साथ ही में उसका फ्लिप ले लिया करो, तब मिस नहीं होगा कुछ भी आपका. 2 4 तो 4 2 ले लो. ठीक है, एक 3 3 हमारा 6 बनाएगा एंड आई डोंट थिंक कुछ रह गया. ओके, तो अब आप इसको सबको देखो 1 2 3 4 एंड 5. टोटल आउटकम हमारा 36 रहेगा बिकॉज 36 ही हमारे इधर टोटल चल रहे हैं. ओके, 7 का काउंट देखना है. 7 आई एम गेटिंग हियर. 6 का 1 ऑपोजिट ले लो एंड 2 and 5 make 7. 5 and 2 also make 7. 4 plus 3 make 7. 3 plus 4 make 7.
ठीक है, तो अभी टोटल हो गया मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6/36। 9 का सम देखना है, 8 का उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। लेट्स चेक द 9 का सम। 9 का सम आई कैन गेट हियर, ठीक है, क्योंकि 6 और 2 मुझे दे रहे हैं 7, ओ सॉरी 8, 3 and 6 makes 9, एनी अदर नंबर विच मेक्स 9, 4 and 5, 6 and 3 भी कर दो और इसका फ्लिप भी कर दो, राइट। नाउ एनी अदर विच इज मेकिंग sum as 9, no, so the answer is 1 2 3 and 4 counts। 10 का सम हमें देखना है, 10 हमें मिलेगा 5 और 5 पे, और फ्लिप करेंगे तब भी नहीं, वी जस्ट गेट 5 and 5, एंड इससे ज़्यादा नहीं है, वी कैन हैव 6 and 4 और 4 and 6, सो 3 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास टू गेट अ नंबर 10। 11 के लिए वी हैव 6 and 5, सिमिलरली आप इसका फ्लिप ले लो 5 and 6, एंड आई डोंट थिंक कुछ रिमेनिंग है, तो द आंसर इज 2/36। क्लियर, तो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है 12 का, विच इज 1/36, जो आप देख सकते हो, विच इज लाइक 6 and 6 ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया टेबल। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, विच इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। भाई जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं एंड 12 एज वेल, तो therefore each of them has a probability of 1/11। do you agree with this argument? justify your solution। देखो यहाँ पे वो स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है कि जब 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, सम 2 आ सकता है 3, तो फिर सबका इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, लाइक एवरी प्रोबेबिलिटी भाई 2 ही आएगा, लाइक सम ऑन 2 डाई हमारा 2 ही आएगा, वो भी 1/11 होना चाहिए। सम ऑफ 2 डाई 3 होगा, वो भी 1/11 होना चाहिए, सेम एज विद 4 अप टू 12। ओके, तो वो ये बोल रहा है कि जो भी नंबर हमारे डाई पे आ रहे हैं, हम उनको ऐड कर रहे हैं, तो उन सब की प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम होगी, पॉसिबल आउटकम्स के लिए बिल्कुल सेम होगी, राइट। बट लुक, वो हमारा तब कंडीशन होती है जब हमारे पास डाई पे नंबर है और हम ये देख रहे हैं कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे हम सम देख रहे हैं, सम के केस में हमारे दोनों डाई पे कोई भी नंबर आ सकता है, इट कुड बी एनी नंबर। यहाँ पे मेरा 3 आएगा तो दूसरे डाई पे हो सकता है 6 आ जाए, या पहले वाले डाई पे आई एम गेटिंग 2 और दूसरे पे हो सकता है आई एम गेटिंग 1 ओनली। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि आई एम गेटिंग सिमिलर आउटकम्स अनफेवरेबल ईच टाइम। जब मेरे फेवरेबल भी सेम नहीं है तो मुझे कैसे इक्वल प्रोबेबिलिटी मिलेगी हर एक आउटकम के लिए। ओके, आउटकम यहाँ पे मुझे चाहिए सम ऑफ 2 डाइज, ठीक है। सम ऑफ 2 डाइज में जब 2 डाई हैं तो डेफिनेटली मेरे एक डाई पे कोई भी नंबर आ सकता है, दूसरे पे कोई भी, और जब मैं इनको सम करूंगी डेफिनेटली वो दूसरे जो नंबर आएंगे उनसे डिफरेंट होगा, करेक्ट। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और ये हम शो कर सकते हैं इस टेबल से कि जब हम 2 आ रहा है हमारा सम, ओके, तो प्रोबेबिलिटी 1/36 है, और जब 3 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी इज 2/36, क्योंकि सम डिफरेंट है, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो दैट्स वाई वी डू नॉट एग्री, वी डू नॉट एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, एंड वी कैन जस्ट जस्टिफाई बाय शोइंग दिस टेबल टू देम, करेक्ट। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is all about a game. So game consists of tossing 1 rupee coin, ठीक है। 1 कॉइन, जो 1 रुपये का कॉइन है, आपने उसको टॉस किया, टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। अब देखो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो आप एक ही कॉइन को 3 बार कर रहे हो या फिर 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली कर रहे हो, तो ओके, दोनों में पॉसिबल आउटकम्स बेसिकली टोटल आउटकम बिल्कुल सेम होता है। या तो आप एक कॉइन को ही 3 बार कर रहे हो, या 3 कॉइन आपके पास है और तीनों को आप कर करके देख रहे हो क्या क्या आपके पास पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, ओके। तो दोनों में बिल्कुल सेम बात चलती है, दोनों में बिल्कुल टोटल आउटकम सेम होते हैं, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। तो चलो पहले हम इनके आउटकम्स नोट करते हैं। व्हेन वी हैव 3, वी आर जस्ट टॉसिंग 1 कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है। तो मेरे टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, लेट्स जस्ट चेक।
So here, when I'm tossing 3 coins, I can get heads, 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 tails, tails, tails. ठीक है, पहले बारी में आई एम गेटिंग हेड, देन सेकंड टाइम पे आई एम गेटिंग हेड, देन थर्ड टाइम पे आई एम गेटिंग हेड, सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम पे आई एम गेटिंग टेल, देन अ टेल, देन अ टेल. ठीक है, फिर हो सकता है कि पहले पे आई एम गेटिंग हेड, दूसरे पे भी, दूसरी टर्न पे भी मुझे हेड्स आ गया, थर्ड टाइम आई जस्ट टॉस द कॉइन, आई गॉट टेल्स. फिर सिमिलरली आई एम गेटिंग हेड्स अगेन, बट टेल्स मेरा सेकंड टॉस पे आ गया, देन अ हेड, टेल्स, देन अ हेड, देन अ हेड, पहले हेड आ गया, फिर टेल आया, फिर टेल आया, राइट, और टेल आया पहले इस बार, और देन हेड एंड टेल, एंड देन आई एम गेटिंग टेल्स, टेल्स, देन अ हेड. तो यहाँ पे आई एम गेटिंग द टोटल आउटकम विच इज 8. ओके, Hanif wins if all the tosses give the same results. ठीक है, that is 3 heads or 3 tails. Okay, वो जीत जाएगा जब उसके Hanif wins if all the tosses gives the same results. अब जो वो टॉस कर रहा है और ये रिजल्ट्स अगर उसको मिल रहे हैं तो वो जीत जाएगा. ओके, तो लेट्स जस्ट चेक द थिंग, 3 heads और 3 tails. अब ये वाले ऑप्शंस हमें देखने हैं जिसमें से वी आर गेटिंग 3 heads and 3 tails एंड लॉसेस अदरवाइज. अगर ये आ गया तो वो जीत जाएगा, और अगर ये नहीं आया तो वो हार जाएगा. सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज द गेम. हमें लूज की देखनी है, तो जितनी पॉसिबिलिटीज हैं हेड्स और टेल्स के आने की, उसके अलावा जो बचा उसमें वो हार जाएगा. करेक्ट, तो यहाँ पे हेड्स और टेल्स आने के 3 heads विच इज लाइक दिस वन, और 3 tails विच इज लाइक दिस वन. तो वो सिर्फ जीतेगा जब ये दोनों आएंगे. करेक्ट, और जब बाकी में से कुछ भी आ गया तो वो हार जाएगा. और हमें भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो लूज कर जाए गेम. ओके, तो प्रोबेबिलिटी हानिफ विल लूज द गेम. तो टोटल आउटकम्स तो 8 ही रहेंगे. फेवरेबल में से हम 2 हटा देंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, हमें लूज की निकालनी है, हमें जीतने की नहीं निकालनी. तो रिमेनिंग इज 6. ओके, सो द आंसर इज 3/4. Question number 24. A die is thrown. What is the probability that 5 will not come up either time? ठीक है, 2 डाई है जिसको, सॉरी, एक डाई को ही हम 2 बार टॉस कर रहे हैं. तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि चाहे एक कॉइन हो और 2 कॉइन हो, एक कॉइन को आप 2 बार कर रहे हो या 2 अलग अलग कॉइन है, दोनों बातों में टोटल आउटकम बिल्कुल सेम आएगा. ऐसे ही डाई की बात करते हैं. अगर एक डाई को आप 2 बार कर रहे हो, या आपके पास 2 डाई हैं जिसको आप करके देख रहे हो कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, दोनों में सेम टोटल आउटकम्स होते हैं विच इज 36. ओके, वी डिड दिस इन द प्रीवियस क्वेश्चन एज वेल. तो यहाँ पे 5 विल नॉट कम अप ईदर, दोनों में से 5 दोनों ही डाई पे नहीं आने चाहिए. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट थिंग विच इज लाइक 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम. तो यहाँ पे ना पहले ही प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आई विल सी द टोटल आउटकम विच इज 36. करेक्ट, अभी मुझे देखना फेवरेबल मेरे पास कितने हैं. फेवरेबल आउटकम्स देखने के लिए आई विल सी जिसमें से 5 नहीं आएंगे. तो पहले तो मैं देखती हूँ 5 वाले कौन कौन से. ठीक है, अभी आई एम नॉट मेकिंग चार्ट अगेन, बट यू कैन जस्ट डेफिनेटली मेक द चार्ट जिसमें से आई विल सी 5 मेरा कब आता है. या तो देखो मैं सारे नंबर्स के साथ ना 5 ले लूँगी, 1 के साथ, 2 के साथ, 3, 4, देन 5 एंड देन 6 के साथ. इसको स्वॉप कर दो. इसका मतलब फर्स्ट डाई पे नाउ आई एम गेटिंग 5. ठीक है, सेकेंड डाई पे तो वी हैव ऑलरेडी टेकन दैट, and here I got this 5 and 4. 5 रिपीट होगा तो आप दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू हैव टू टेक 1 टाइम ओनली. ठीक है, एक चीज को 2 बार नहीं लेना, लाइक दोबारा 5 नहीं लेना. ओके, एक ही टाइम किसी को काउंट करना है. तो आप ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. तो फेवरेबल आउटकम आपके क्योंकि ये तो है जिसमें 5 आएगा. ठीक है, आई नीड कि 5 ना आए. ठीक है, तो इसका शॉर्टकट है कि आप 36 में से जिसमें 5 आ रहा है उसको सबट्रैक्ट कर दो, तो यू विल गेट 25. 25 वो कॉम्बिनेशंस है जिसमें 5 नहीं आएगा. ओके, तो फेवरेबल मेरे पास कितने हैं, 25. तो प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, दैट इज 25/36. Got it? Next is 5 will come up at least 1. भाई एक बार तो 5 आएगा, उससे ज्यादा भी आ सकता है. ठीक है,
तो वो तो जस्ट हमने अभी देखा 5 हमारा कितनी बार आ रहा था, वी जस्ट काउंटेड दैट 11 टाइम्स, और जिसमें हमारा ट्वाइस वाला भी काउंटेड था ऑलरेडी, ठीक है। सो सेकंड का आंसर आ जाएगा probability to get a 5, that 5 will come up at least one time, okay, that is 11 upon 36. Got it? अब इस उन्होंने वन टाइम बोला तो कंफ्यूज नहीं होना, वन टाइम भी है, इसमें ट्वाइस ऑलरेडी काउंटेड है, ठीक है। तो 11 अपॉन 36। अब आप इसको 2 वेज से कर सकते थे, या तो आप ऐसे ही कर लो, या फिर आप इसमें से, जैसे कि 1 में से, ये आपको सिखाया था ना मैंने, ये वाली चीज, लाइक प्रोबेबिलिटी, जब आपको पता है 5 विल नॉट कम अप ईदर वन टाइम ईदर टाइम, ठीक है, दोनों में आपने ये लिया था, तो आप उसको 1 माइनस करके भी कर सकते हो, यू विल गेट योर आंसर विच इज 11 अपॉन 36, ठीक है। देखो, तो आप दोनों वेज से इसको सॉल्व आउट कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हो, और इवन इफ यू हैव ऑलरेडी मेड द चार्ट तो आप ऐसे भी कर सकते हो। So let's do the last question. Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reasons for your solution. Number 1 is, if 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads, 2 tails, 1 of each. So therefore for each of these outcomes the probability is 1/3, ठीक है। अब हमारे पास 2 कॉइन्स है जिसको हम टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक। तो जब 2 कॉइन्स की प्रोबेबिलिटीज का टोटल आउटकम आप देखोगे, लाइक पॉसिबल आउटकम्स आपने चेक करना है। सो यू आर गेटिंग हेड्स और हेड्स, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आउटकम्स देखते हैं पहले। जब आई एम हैविंग 2 कॉइन्स, हो सकता है पहले हेड हो, टेल हो, और आई एम गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट एंड टेल्स ऑन सेकंड एंड टेल्स ऑन फर्स्ट एंड हेड्स ऑन सेकंड। तो पहली बार दे आर टेलिंग अस कि 3 पॉसिबल आउटकम आएंगे, विच इज इम्पॉसिबल। मेरे पास अगर 2 कॉइन्स है तो डेफिनेटली आई विल गेट 4 टोटल आउटकम्स, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास 4 होंगे, जिसमें से कि 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच में से मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो दोनों में से हेड्स पहले आ जाएगा या फिर सेकंड में टेल पहले आ जाएगा, करेक्ट। और सबकी प्रोबेबिलिटी इज नॉट 1/3 बिकॉज आई एम हैविंग टोटल आउटकम 4। तो अगर मुझे हेड्स चाहिए या कुछ भी, तो आई एम गेटिंग 1/4। तो हर किसी की पॉसिबल आउटकम 1/4 ही है, okay. So this is impossible or incorrect, you can just say, okay. So for this part number 1, this is absolutely incorrect because अगर मेरे पास 2 coins हैं और मैं उसको simultaneously toss कर रही हूँ, मेरे 3 possible outcomes आ ही नहीं रहे, I am getting 4 possible outcomes, okay. Let's do the second part. If a die is thrown, there are 2 possible outcomes, ठीक है, या तो an odd number or an even number. Therefore the probability of getting an odd number is half. तो चलो एक die है, तो 1 die को रोल करेंगे तो मे बी आई विल गेट 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे इफ आई विल सी, आई एम गेटिंग 6 काउंट्स में से ये वाला ऑड नंबर, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, ठीक है। तो probability to get an odd number is 3/6, which is half. So the second part is absolutely correct, कि जब मुझे probability चाहिए odd number की, when I'm rolling a die is half. So second part is correct. Hope you are getting this point and I hope you got all the questions. If you have any problem, any query and you want to ask anything, you can comment down in the comment box. Please do like, subscribe and share and keep watching the series. Thank you.